वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है अपने ऑनलाइन क्लासरूम एक्सेलेंस लर्नर में। और आज का विषय है अ पोएम, जो क्लास 9 और 10 ICSE बोर्ड में है। और इस पोएम का टाइटल है आई नो वाई द केज बर्ड सिंग्स। I know why the cage bird sings is a poem written by Maya Angelou. This is a poem that tells about the clash between white and black that was in America when the poem was written. The poetess of the poem, she is the poetess of the poem, Maya Angelou, was an African American. That's why in her own life she suffered a lot. She had to suffer a lot pain and problem because that time the entire American society was dominated by the white, and the pain and suffering which she received in her life is very skillfully and masterly sketched and depicted with the help of this poem. माया एंजेलो जब मात्र 17 वर्ष की थी तब कहा जाता है उन्होंने इस कविता की रचना की थी, और उस समय इनकी यह कविता वर्ल्ड वाइड फेमस हुई थी। इनकी कविता के हर एक शब्दों में इनके दर्द और इनकी कठिनाई का हम अनुभव कर पाएंगे। यह कविता मुख्य रूप से अमेरिकन में वाइट और ब्लैक के बीच जो क्लैश था उसको चित्रित करता है, उसको वर्णन करता है। तो चलिए हम लोग कविता में प्रवेश करते हैं। इस कविता में दो पक्षियों के माध्यम से कवि ने उस समय की सामाजिक स्तर का विवेचना किया है। विद द हेल्प ऑफ टू डिफरेंट वर्ड्स, वन इट इज ए फ्री एंड अनदर इज इन केस। सो द टू वर्ड symbolized here, and one represents the free society, the society that belongs to white only. On the other hand, the bird that is in case represents the society of black people of America, right? So I read the first stanza for you. The free bird leaps on the back of wind and floats downstream till the current ends, and deep with wings in the orange sun rays and dare to claim the sky. She says about the bird that is free. वो इतना फ्री है कि वह हवा के पीठ के ऊपर बैठकर सवारी कर सकता है, राइट? मीन्स their speed are really very great. Their speed can be compared with the speed of a wind. On the other hand, the bird that is free not only fly into the sky, but on the same time it also can dip his wings into the orange sun rays and dare to claim the sky. मतलब वो सूरज तक उसकी पहुँच है, सूरज भी उसके दायरे में आता है और पूरा आकाश उसका अपना है। यह स्थिति है उस पक्षी की जो आज़ाद है, यह स्थिति है उस व्यक्ति की जो आज़ाद है, यह स्थिति है उस व्यक्ति की जो अमेरिकन वाइट है, राइट? ठीक है, चलिए दूसरा स्टेंजा। बट ए बर्ड that stalked down his narrow cage can seldom see through the bar of rays. His wings are clipped, his feet are tired. His feet are tired, so he opens his throat to sing. But a bird that stalks मतलब डंटल, stalks down his narrow cage. आपने देखा होगा पिंजड़े में छोटे छोटे रॉड से बना होता है, वह उसको स्टॉक कहा गया है। दूसरे पंक्ति में, दूसरे स्टेंजा में इनफैक्ट यह कह रही हैं कि जो पक्षी बंधा हुआ है स्टॉक के अंदर,
केज के स्टॉक के अंदर कैन सेंडम सी थ्रू हिज बार ऑफ रेज, उसके चारों ओर वह लोहे का नहीं बल्कि उसके गुस्से का बार है, गुस्से का वह स्टॉक है। बिकॉज ही फील्स हिमसेल्फ in the sea of dissatisfaction when it compares itself with the bird that is free and that has ample opportunity to fly. That time, seeing his own present situation, he is enraged, he is in dissatisfaction, right? क्यों dissatisfied है भाई? His wings are clipped, उनके पंख कतर दिए गए हैं, उस and his feet are टार्ड, उसके पांव बांध दिए गए हैं, इसलिए वह केवल चिल्ला सकता है, केवल गा सकता है। His all opportunity has been seized. It has no wing to fly, it has no feet to run. Everywhere it finds itself in the cage, and seeing his confined life, seeing the life full of trouble and obstacle, it has only one option, and the option is to sing, the option is to cry, in fact, right? क्योंकि इन्होंने पहला ही जो इसका शीर्षक रखा है, जो हेडिंग रखा है, I know why the cage bird sings, so she gives us reason to sing a bird that is in cage, right? चलिए next. The cage bird sings with fearful trill of things unknown but long for still, and his tone is heard on the distant hill, for the cage bird sings of freedom. The cage bird sings, ये पक्षी जो पिंजड़े के अंदर है वह गाता है। Of things unknown, वह क्यों गाता है पता नहीं, क्योंकि अब तक तो उसने पूरा का पूरा संसार देखा ही नहीं। Everything is unknown to it. But his desire is long. He has not given up his desire. The desire is still alive. And his tone is heard on the distant hill. और इसलिए उसकी जो आवाज़ है दूर पहाड़ियों तक, दूसरे देशों तक, दूसरे कम्युनिटी तक भी पहुंच जाती है। क्यों पहुंचती है? कि द केज बर्ड सिंग्स ऑफ फ्रीडम। ठीक, क्योंकि जो केज बर्ड है वह गीत गा रही है आज़ादी की। The free bird thinks of another breeze, and the trade wind soft and singing trade. The free bird sings of another breeze, and the trade wind soft through the singing trees. Through the sighing trees, and the fight warm waiting on a dawn bright lawn, and names the sky his own. The free bird thinks of another breeze. जबकि दूसरी ओर जो पक्षी फ्री है, जो व्यक्ति आज़ाद है, उसके मन में नई परिकल्पनाएं आती हैं। अनदर ब्रीज एंड ट्रेड विंड सॉफ्ट थ्रू द साइंग ट्रीज, और हवा के झोंके से उसके पास क्या आता है? साय मतलब द ब्रीथ ऑफ रिलैक्सेशन, राइट? संतोष का एक सांस वह लेता है। कौन? जो पक्षी फ्री है, जो व्यक्ति आज़ाद है। एंड द वार्म वेटिंग ऑन डाउन ब्राइट लॉन, और सुबह सुबह अपने लॉन में बैठकर सूरज के गर्मी को महसूस करता है। एंड नेम द स्काई इज ओन, और पूरे आकाश को अपने नाम से लिखा लेता है। सभी और केवल सिंबॉलिक यूज़ किया है पोएट्रेस ने। यह कह रही है जो पक्षी फ्री है, जो चिड़िया आज़ाद है, उसके लिए सब कुछ अच्छा है। उसके लिए हवा भी सुखदाई होता है, धूप भी उसे सुबह का गुदगुदाता है उसके लॉन में, और पूरा आकाश, पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड का विस्तृत क्षण उसके नाम पर आ जाता है, राइट? सो ईच एंड एवरीथिंग ऑफ द वर्ल्ड, वेदर इट इज़ ब्रीज, whether it is air, whether it is sun, lawn, and the entire world, his names everything, right? आगे, but a cage bird stand on the grave of dream, बहुत सुंदर लाइन लगती है मुझे यह। But a cage bird stands on the grave of dream, his shadow shot on a nightmare scream, his wings are clipped, feet are tired, so he opened his throat to sing.
फिर बता रही है इस स्टेंजा में कि वह पक्षी जो पिंजड़े में है वह क्यों गा रहा है। क्योंकि वह पक्षी बर्ड स्टैंड्स ऑन द ग्रेव ऑफ ड्रीम, वह अपने सपनों के कब्र पर खड़ा है। एवरीवन हैज इट्स ओन ड्रीम, बट when one sees that his dream is being clipped, his dream is being chopped off, that time he finds himself on the grave of his dream and seeing his own shadow. He feels that like a nightmare. Nightmare मतलब एक डरावना स्वप्न, एंड अपने परछाई को ही वह एक डरावना सा स्वप्न देखकर चिल्ला उठता है, क्योंकि वह अपने आप को पाता है अपने सपनों के कब्र के ऊपर। क्योंकि उसके पाँव, फिर वैसी बात को वहाँ पर एम्फेसाइज कर रहे हैं, पोएट्रेस कह रही है उसके पाँव बंधे हुए हैं, उसके पंख कटे हुए हैं, बस उसके पास एक ही उपाय है, अपने कंठ खोलकर गाने का। ठीक, आगे। द केज बर्ड सिंग्स विथ ए fearful trail of things unknown, but long for a still, and tone is heard on the distant hill, for cage bird sings of freedom. द केज बर्ड जो है वो भय के साथ, भय मिश्रित थरथराहट के साथ गीत गा रही है। वह आवाज़ उसकी दूर तक सुनाई पड़ रही है, क्योंकि वह स्वतंत्रता की गान गा रही है, वह स्वाधीन होने के लिए गा रही है, इसलिए उसकी आवाज़ में दम है, वह दूर तक जाती है। तो इस कविता का यह सम टोटल कुछ ऐसा मीनिंग रहा। ठीक है, अब इस कविता के अंदर जो लिटरली डिवाइस का यूज़ कवियत्री ने किया है उसे देखने का समय आ गया है। देख लेते हैं। इसमें एलिट्रेशन का यूज आप कई बार देखेंगे। एलिट्रेशन वह है, एलिट्रेशन इज ए डिवाइस इन विच सीरीज ऑफ वर्ड बिगिंस विथ सेम साउंड। जैसे कविता में आप देखेंगे सेल्डम सी, सेल्डम और सी स्टार्ट्स एस साउंड, इट हैज एस साउंड। अगेन वी हैव हियर warm waiting, warm and waiting starts with C, shadow shout starts with S. So alliteration का यूज हुआ है। दूसरा हुआ है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या है? पर्सोनिफिकेशन एक डिवाइस है जिसके तहत हम किसी भी निर्जीव को सजीव के रूप में चित्रित कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन का भी यूज़ किया गया है। जैसे कि आप देखेंगे एक लाइन, जैसे कि अभी मैंने आप लोगों के सामने रखा था पर्सोनिफिकेशन में, साइन ट्री, ट्री साइज, इट जनरली एंड रियली नेवर एवर हैपन्स, बट कवियत्री ने इसे लिखा है। दूसरी चीज़ में एक चीज़ और आपको बताऊं, मैं हम छोटे पक्षियों के लिए या जानवरों के लिए इट का प्रयोग करते हैं एज ए प्रोनाउन, बट हियर हीज इज यूज्ड। सो यहाँ पर भी इन्होंने पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया है। सिंबल के बारे में जैसे मैंने बताया, केज वर्ड एक जो डिफरेंट केज वर्ड का इन्होंने यहाँ पर एक स्केचिंग किया है। सो यह भी अलग अलग सिंबल के रूप में दिखाई दिया गया है। यहाँ पर रिपीटेशन भी दिखाई पड़ते हैं, एक ही वर्ड एक ही सेंटेंस, जैसे कि ए फ्री वर्ड, द केज वर्ड का यूज़ किया गया है, तो ये रिपीटेशन है। रिपीटेशन का यूज़ करते हैं पोएम में अपने बातों को एम्फेसाइज क्रिएट करने के लिए। इसका कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है, यह इरेगुलर राइम है। तो यह सम टोटल रहा इस कविता का शीर्ष भावार्थ, और मुझे पक्का विश्वास है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आपको यह कविता समझ में आ गई होगी। बस मैं एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय समय पर आपके जो सिलेबस के मुताबिक जो भी कुछ अपडेट मैं यहाँ से करूँ, वीडियो डालूँ, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपके लिए सहूलियत हो। चलिए, धन्यवाद।